दिस इज मई जून 2024 पेपर 1-1 MCQ पेपर है. So a scientist heats a sample of a liquid. The scientist measures the temperature of the sample and plots a graph of the temperature against time. Which statements are correct? Between points W and X, the temperature increases and the particles move faster. देखो W और X में ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो इंक्लाइन हो रहा है. बात समझ रहे हो? सो टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज करेक्ट. कि टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, ऑप्शन स्टेटमेंट टू. Statement 2 mein he's saying that between point X and Y, there is no change in temperature. Yes, that's true. There is no change in temperature because energy is needed to change a liquid into gas. Energy is energy is needed to change a liquid into a gas. Okay. ये भी सही है बिल्कुल बात कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और when you have to change the liquid into a gas, obviously energy is needed. And in statement 3, between points Y and Z, the particles move further apart. The particles move further apart. That's also true. That's also true. याद रखिएगा. Why the line becomes straight and why the line is going to move upward. There is a difference between these two statements. When the line becomes straight, so you need to know that a substance is changing its state. Substance is changing its state. याद रखिएगा. Substance is changing its state. Whenever the substance is going to change its state, the temperature doesn't change. This is a concept. ये हमने कब बताया था आपको? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. वेरी बेबी चैप्टर है ये, बिल्कुल बिल्कुल डे वन की बात बता रहा हूँ मैं आपको. So and when you can see the line is going to move upward, so means that now the substance has changed its state. ऑब्वियस सी बात है, तभी तभी तो कह रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट 3 में कि between points Y and Z the particles move further apart. Exactly, it becomes gas और गैस के पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. ऑब्वियस सी बात है. सो तीनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स व्हाई आई वुड से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, बेसिकली दिस इज योर हीटिंग कर्व. Basically this is your heating curve, how the substance changes their state from liquid to gas, from solid to liquid, from solid to gas. They are called heating curve. और cooling curve भी तो होते हैं, if you remember. कूलिंग कर्व में गैस टू लिक्विड, liquid to solid, gas to solid. So basically the particles come closer to each other. That's called cooling curve. In heating curve, the particles are going further apart. That's called heating curve. You are going to heat the sample. You are going to heat the sample. So when you are going to heat the sample, so the particles are gaining kinetic energy. They are going to move further apart. They are going to move further apart. याद रखिएगा. ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, then question number 2. A sample of substance X, a sample of substance X contains iron and sulfur only. Okay, in which raw is it possible for both statements about X to be correct? कह रहा है, a sample of substance contains iron and sulfur. Iron and sulfur. What's the mass of iron? 56. What's the mass of sulfur? That is 32. Okay, that is 32. First of all, you need to know, okay, what is this? Is this a compound or a mixture? Is this a compound or a mixture? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. तो basically X is a mixture. X is a mixture. याद रखिएगा, X is a mixture. So with the ratio 7/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग. डिवाइडेड बाय द लीस्ट नंबर दैट इज 32. या तो आप इसको कह लो कि इसको डिवाइड करना जरा 32 से, क्या आंसर आ रहा है 56 को? 7 divided by 7 over 4, 1.75.
1.75, ये 7/4 बन रहा है। जी Yes. तो इसको आपने क्या किया, ये हो गया ये, फिर ये हो गया ये, और फिर ये हो गया ये, और ये हो गया 2 1 2, ऐसे ही है, कैंसिल आउट कर दी मैंने इसे। इसे जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8 16, देन 2 1 2, 2 4 8, देन 2 7 14, देन 2 7 14। ये मैंने रेशो सही बनाया, देखो जरा, इज दैट करेक्ट? 7/4 Yes, और sir. 7/2। सर, तो जब हमारे पास 7/4 आ जाता है और हमें पता है कि ये 1 है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करके रेशियो नहीं ले सकते सिंपलेस्ट? बिल्कुल ले सकते हो रेशो मल्टीप्लाई करके, मसला नहीं है कोई। तो मैंने जो यहाँ पर लिया है रेशो, ये इसमें तो 7/2 आ रहा है, आप कह रहे हो 7/4, ये मुझे बताओ कैसे, क्या अगर किया मैं आपने? 7/4 लूं, ओके। मेरे पास 1.75 आता है हम्म। और 1 आ जाता है। ओके। मैंने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। 1.75 हो गया 7, 1 हो गया 4। तो एफ टू एस का रेशियो आ गया 7/4। सही है, ओके। लेकिन असल में ना ये देखो, ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा क्या है कि X is a mixture, ये स्टेटमेंट 1 है आपकी, X is a mixture with the ratio of this iron and sulfur का, और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है in which raw is it possible for both statements about X to be correct, फिर कह रहा है X is a compound with the ratio of 7/4। तो ये याद रखना कि ये मिक्सचर भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। If you are going to do a chemical reaction, it would be forming a compound that would be iron sulfide. And if you are only mixing this iron and sulfur in the powdered form, you are not providing any type of heat, so it's called a mixture. तो ये mixture भी possible है and also the compound is possible. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करो, अपने ऑप्शंस को कम करो, सबसे पहले तो आसान करो चीजों को, इजी बनाओ चीजों को। Why not A is correct? Why not A is correct? Remember, in A, they are saying X is a mixture with the ratio of 4/7। ये 4:7 रेशो नहीं आ रहा, अभी आपके सामने बनाया ना, पहला 7 था, पहला रेशो क्या था, 7 था। फर्स्ट नंबर वॉज 7, फर्स्ट नंबर वॉज 7। तो ये तो मतलब इट इट डजेंट मेक सेंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, ये तो सोचूंगा ही नहीं मैं इस बारे में तो बिल्कुल ही। दूसरा कह रहा है एक्स इज अ मिक्सचर विद द रेशो ऑफ, और एक्स इज अ कंपाउंड। चलो इसको अभी मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, सी को देखते हैं, एक्स इज अ मिक्सचर विद द फॉर्मूला FeS। इट डजंट मेक सेंस। आप पूछोगे क्यों, मैं बोलूंगा क्या आपको किसी ने बताया कि मिक्सचर का भी कोई फॉर्मूला होता है? हाउ इज दैट पॉसिबल यार कि मिक्सचर का भी कोई फॉर्मूला होता है? मिक्सचर का कोई, देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ द मिक्सचर। भाई लोग पूछते हैं ना, सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिल्क, भाई हाउ कैन आई से यार व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिल्क, मिल्क इज नॉट अ कंपाउंड यार, मिल्क इज अ मिक्सचर, मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होता। तो फिर ये क्यों कह रहा है FeS, ये तो स्ट्रेट अवे गलत, बिल्कुल रॉन्ग। डी में एक्सिज्म, अबे भाई, तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज बी। हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज बी, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा बस, ओके जी। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ओके। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछो कि ये 7/4 कैसे आया, तो ये 7/4 ऐसे आया कि इन्होंने आपको मैसेज दिए हुए हैं, ओके, आपको मैसेज दिए हुए हैं आयरन का 56 एंड सल्फर का 32, और यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो। आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि इट इट बिकम्स द सिंपलेस्ट, नाउ यू कैन नॉट डिवाइड इट बाय एनी नंबर। तो डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय, किसी एक नंबर से डिवाइड कराना है, रिमेंबर किसी एक नंबर से डिवाइड कराना है। डिवाइडेड बाय 8, तो इट बिकम्स 8 7 56, इट बिकम्स 8 4 32। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर यार, it cannot be simplified further, remember, it cannot be simplified further, so that's why this option is correct। सही है जी, that's why this option is correct। कोई भी डाउट किसी को भी हो उसी टाइम मुझे रोक देना, आगे जाओगे समझ नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, उसी टाइम रोक के पूछ लो, क्लियर हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि a chlorine atom Z has a nucleon number of 37, which raw is correct, which raw is correct, number of neutrons, nucleon number is the sum of, है ना, क्या डेफिनेशन बताई थी, I told you nucleon number
is the sum of proton and neutron. Nucleon number is the sum of proton and neutron. Okay, which raw is correct? जाओ periodic table में, जाओ periodic table में देखो what is the proton number for chlorine. I know the proton number for chlorine is 17. You all know that hopefully. Okay, proton number is going to tell you the two things. Number one, number of electron. Number two, number of protons. तो कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? 17. Now you are supposed to uh, they are saying number of electrons in the second shell. In the second shell, can you draw the structure for chlorine? This is the first shell having 2 electrons. This is the second shell having 8 electrons, or this is the third shell having 7 electrons. This is the structure for chlorine. So what it is saying that कि सेकंड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 7 7 वाले यू हैव टू ऑप्शंस, दिस एंड दिस. बट किसको सिलेक्ट करूं मैं? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है. आई वुड से दैट न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं पहले हम. 37 माइनस 17, 37 माइनस 17, क्या आंसर आएगा 37 माइनस 17 का? आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. 20 आएगा ना? 20 आएगा ना? So that's why D for C for cat is correct. C option इसमें correct है. तो मतलब बिल्कुल easy सा question है, but you need to know the working how we are going to solve this question. तो वो इसने आपको न्यूक्लियन नंबर भी दे दिया, प्रोटॉन नंबर नहीं दिया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल गिवन होता है. आप वहां से जाके देख लेना यार, पीरियोडिक टेबल से इसका प्रोटॉन नंबर. तो क्या मसला है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था सेकंड शेल में कितने हैं, और न्यूट्रॉन्स पूछ रहा था वो आपसे. सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, इजी इजी, आसान है. तो मैंने क्या कहा था कि 37 माइनस 17, 37 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन्स. चलें जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. फर्स्ट यू आर सपोज टू ट्राई, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे होगा. जल्दी से फटाफट. इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. यस, फिर मैं बताता हूँ. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. D for doctor. हाँ, डी फॉर डॉक्टर. ओके ओके. सो क्योंकि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है? सेम Same number प्रोटॉन of नंबर. protons हाँ but ना, और different क्या? neutrons. डिफरेंट न्यूट्रॉन. सेम प्रोटॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन. सो सेम प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा. सेम प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है इन विच यू कैन सी द सेम इलेक्ट्रॉन एंड द सेम प्रोटॉन. सो मदारका, इफ यू आर सेइंग दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो डी में ये मैच करना चाहिए. क्या कहता है? वाई एंड जी. वाई में 26 इलेक्ट्रॉन्स, 26 प्रोटॉन्स और डिफरेंट न्यूट्रॉन. यहाँ ये है आइसोटोप. लेट्स सपोज हुजैफा कहता है सर व्हाई नॉट बी इज करेक्ट, व्हाई नॉट बी इज करेक्ट. तो बी में डब्ल्यू एंड जी देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं. डब्ल्यू में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, 25 प्रोटॉन. नहीं ना यार, ये तो डेफिनेशन पे ही पूरा नहीं उतर रहा. अब हुरिया मुझे कहती है सर व्हाई नॉट सी, सी इज एक्स एंड जी, एक्स एंड जी, एक्स एंड जी. सो एक्स एंड जी में 23 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन्स, 25 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन. मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि जो है ना आइसोटोप में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होने चाहिए. अब ये जो डी ऑप्शन है ना, ये पूरा परफेक्टली परफेक्टली मैच कर रहा है. कैसे पता है? देखना जरा. Y एंड Z, Y में 26 इलेक्ट्रॉन्स, Z में 26 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, Y में 26 प्रोटॉन्स, Z में 26 प्रोटॉन्स.
or number of neutrons are different, or number of neutrons are different. That's why they are isotopes of each other. इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा. इजी है. It's related to chemical bonding. It's related to chemical bonding basically, right? So, which statement is correct? They are asking about graphite and silica. Silica, SiO2 बोले तो silica, giant covalent structure. I told you in covalent bonding that there are 3 types of giant covalent structures: graphite, diamond, and silica. Graphite, diamond, and silica. So, silicon, option A में क्या कह रहा है? Silicon oxide is found as an impurity in an iron ore. In an iron ore. फिर बी ऑप्शन में क्या कहता है कि द एंगल्स बिटवीन द एटम्स इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट्स आर द सेम. बेटा एंगल कैसे सेम हो सकते हैं? मैंने आपको इसकी ज्योमेट्री अलग अलग बताई हुई है ना? अगर आपको याद हो, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने कवर किया हो, तो सिलिका में इज टेट्राहीड्रल, ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल. ज्योमेट्री इज सेम यार. हाउ द एंगल्स आर सेम, ज्योमेट्री इज डिफरेंट. सो हाउ द एंगल्स आर सेम, एंगल भी डिफरेंट होना चाहिए ना. तो ये क्या कह रहा है? एंगल्स आर सेम. तो बी तो 100% रॉन्ग. सी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका एंड ग्रेफाइट आर हाई बिकॉज आयोनिक बॉन्ड. अबे भाई, नो, इट्स हैविंग अ कोवेलेंट बॉन्ड. गलत हो गया सी भी. ओके. D. When graphite acts as a lubricant, the covalent bond between the layers are broken. ये किसने कह दिया आपको? हमने तो आपको ये सिखाया था कि why graphite are soft. तो आप पता है क्या कहते थे? There is a weak intermolecular force of attraction between the layers. अगर आपको याद आ रहा हो, है ना? तो ये गलत बात कही है इसने. पता है क्या होना चाहिए इसको? कि weak intermolecular force between the layers, between the layers. That's why option A is correct. यही बचा है बेचारा नमूना, यही सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके बेटा, गलत सिलेक्ट कर लो, सही पता लग जाएगा. ये भी एक तरीका है एमसीक्यू करने का. ओके, चलो जी. क्वेश्चन नंबर 6. इट्स रिलेटेड टू मोल्स. पहले आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ. जल्दी से, पहले आप सोचो, फिर हम आपको बताते हैं. बी. देखो, अब यू मस्ट नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. सही है ना? कह रहा है कि द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट. ये गलत बात इसने बोली है. ये गलत बात है. ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊं जिसमें दोनों सेम है. पता है कौन सी? H2O, मॉलिक्यूलर भी यही है, इंपेरिकल भी यही है. तो ये तो सेम आ गया. तो ये क्यों कह रहा है फिर डिफरेंट होते हैं? ऑलवेज डिफरेंट? ना 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 ना, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. बी में कह रहा है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2 एंड बेंजीन आर द सेम. पता है क्यों कह रहा है ये? इसको जरा सिंप्लीफाई करो ना तुम, डिवाइडेड बाय 2 करके. इसका आंसर भी तुम्हें ये मिलेगा. इसको भी सिंप्लीफाई करो ना, डिवाइडेड बाय 6 करके. इसका आंसर भी ये मिलेगा. ये तो सेम आ रहे हैं. सो मतलब कि बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. तभी तो कह रहा है empirical formula of ethine, that is C2H2, and a benzene, that is C6H6, are the same. Yes, 100% करेक्ट कह रहा है ये बात. ओके, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मुझे सही मिल गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? देखो, फॉर्मूला नहीं बताया हुआ. हुजैफा, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मैंने क्लास में यही बात कही थी तुम लोगों को कि कभी फॉर्मूला नहीं भी बताएगा. जैसे सोडियम कार्बोनेट का नहीं बताया हुआ था उसने, एक दफा फिर से उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बताया हुआ. तो मुझे पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला. हुरिया, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? यस, यस हुरिया. हम्म. एनीवन? मदारका, उमर, AI, can you मोहम्मद, try? अब्दुल्ला, जमान. Sir, सॉरी, can you hear me?
Yes, Al2O3. गुड हो गया जी, गुड हो गया। Al2O3। आई नीड टू सी द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आई नीड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला मास। सो एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स 2, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 3। टोटल करूंगा तो शायद ये आएगा, आई थिंक सो। यही है, एम आई राइट? यस। ओके हो गया Yes. जी, ओके हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ions are there in 16 grams of anhydrous copper sulfate? How many ions? हाँ जी, I'm going to give you only 1 minute, then I would be telling you, लेकिन fast। एफर्ट करो, एफर्ट करो, सोचो, सोचो। ओके, ओके। चलो मैं बताता हूँ। देखो, क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे थे? मैं बताता हूँ आपको। डी होगा। D. Okay. Let me see this. First of all, you need to calculate the number of moles. First of all, number of particles, basically, I mean to say. Okay, number of particles is equal to okay, mole multiplied by Avogadro's number. That is this. ओके, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन आपको तो मोल ही नहीं पता। पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालूं सर? मोल का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर मास कितना दिया हुआ है? 16। सर मॉलिक्यूलर मास कितना है सर इसका? सर इसको तो फॉर्मूला ही नहीं दिया हुआ। हमें तो पता होना चाहिए ना भाई। कॉपर सल्फेट इज CuSO4। सो कॉपर सल्फेट का निकाल के बताइए जरा, क्या आंसर आएगा? कॉपर का मुझे याद आ रहा है शायद 63.5 है। सल्फर का आई नो 32। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। सबको ऐड मल्टीप्लाई कराओ, जरा बताओ क्या आंसर आ रहा है। यस, मॉलिक्यूलर मास। बोले तो मॉलिक्यूलर मास, मास मास मास। हाँ जी। 106.5। 106.5 नहीं यार, मेरे ख्याल में तो शायद, पता नहीं। लेट मी डू नहीं, दिस। सॉरी, 160.5। 160, ओके 160, ओके 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 160.5। जरा डिवाइड करवाना और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना और आंसर बताना क्या आ रहा है। यस, जल्दी जल्दी। यू मस्ट हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये तो 6.1 टाइम्स 10 to the power 22 आ रहा है। 6.1 टाइम्स 10 to the power 22 आ रहा है, ऐसे ही है। हम्म। ओके, सो हाउ मेनी आयॉन्स आर देयर इन कॉपर सल्फेट? पता है कैसे पता लगेगा? कॉपर सल्फेट को ब्रेक डाउन कर दो, यू विल हैव दिस एंड दिस। हुजैफा देख लो, ये मोल का क्वेश्चन है। बताएंगे हम, कल भी बताएंगे आपको ये। तो कितने आयॉन हैं टोटल? 2 आयॉन्स हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2 करवाओ ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कराओ ना, तभी तो आपको पता लगेगा हाउ मेनी आयॉन्स आर देयर। हाउ मेनी आयॉन्स आर देयर, तो जरा मल्टीप्लाई करवा के आंसर बताना क्या आ रहा है, फटाफट। 1.2 times 10 to the power 23।
A is your correct option. A is your correct option. Simple, simple, simple. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा 9 में, सेम फॉर्मूला लगेगा 9 में। सो सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रेटेजी, सेम फॉर्मूला। आपको टाइम दे रहा हूं, पहले आप करो फिर मैं बताता हूं, फटाफट जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। मैं हिंट दूं आपको, इसमें आप पहले ना एक काम करिए, सब में पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, सब में, सब में, सब में, सब में, सब में, सब में पार्टिकल्स कैलकुलेट करो। किस में? सब में पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, सब में पार्टिकल्स कैलकुलेट करो। ओके, बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है, सेम फॉर्मूला लगा के। ओके, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, जल्दी से फटाफट। Sir, is it C? पहले का है 3.01 टाइम्स 10⁻23। देखो इसमें ना असल में आप एक काम करिए, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें एटम्स कितने हैं। वाटर में पता है कितने एटम्स होते हैं? वाटर का फॉर्मूला इज H2O, तो टोटल 3 एटम्स हैं। इसमें कितने एटम्स हैं CO2 में? इसमें भी 3 है। इसमें कितने हैं? मीथेन का देखो, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद तो वो ये नहीं कर सकता। CH4 में कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड में टोटल 2 एटम्स हैं, टोटल 2 एटम्स हैं। तो जो भी तुम्हारा आंसर आए ना, उसको तुम मल्टीप्लाई करवाना, उसको तुम मल्टीप्लाई कराना। ए को 3 से, बी को 3 से, सी को 5 से, डी को 2 से, फिर देखना सबसे बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है, तो फिर वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, ओके जी। तो अब बता दो जरा क्या आंसर है यार। यस, हाँ जी। Sir, is it C? C. You are saying C option. Okay, Yeah. so yes, C So is it will be correct 5 option. times 2, right? C is your correct option. क्या कह रही हो आयशा? I said like it will be 5 times 2. It is 10, so it is the greatest one among all. 5 times 2. Why 5 times 2? ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा रही हो? हैं? नहीं ना, देखो 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 देखो, मैं इसको प्रॉपरली अभी सॉल्व कर लेता हूँ, देखिएगा जरा। इसको प्रॉपर पता है कैसे करोगे आप लोग? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, बेसिकली आपको पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं ना इसमें, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज दिस। मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर
ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको कैसे करोगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, देन मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, देन मल्टीप्लाइड बाय, टोटल कितने एटम्स थे इसमें? 2 थे। अब देखो सबसे बड़ा आंसर किस में आ रहा है, तो वो होगा ऑप्शन सी। सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन सी का आएगा। दैट्स व्हाई सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगाया है इसमें, देखो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाया है मैंने, याद रखिएगा ये बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाया है। ओके, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये सारे क्वेश्चन हमें 1 मिनट में करने हैं, लेकिन ये 1 मिनट वाले हैं नहीं। अरे यार उस्ताद, अब तुम, अब सच सुन लो कि मेरे भाई ये 1 मिनट का भी नहीं है। 1 मिनट, पता है क्यों? भाई एक बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं याद, तो क्या करेगा यार वो, तुम बताओ। अब मुझे ना, मुझे पता है यार, नंबर ऑफ पार्टिकल सैंपल के एटम्स, अच्छा ये फॉर्मूला है, फटाफट फटाफट कैलकुलेटर की टक 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 टक। लेकिन शर्त है, ये एक दफा में नहीं होगा, आपको मल्टीपल पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके तुम्हारा हाथ चलेगा एकदम टाइगर की तरह, वरना तो बेटा फिर बैठे ही रहना। पहले तो आधे घंटे तक ये सोचेंगे, अबे यार फॉर्मूला कौन सा लगा, सर ने तो 4 फॉर्मूले बताए थे मोल्स के। भाई इट मेक सेंस, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तभी तो हम कहते हैं बार 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 पास पेपर पास पेपर पास पेपर, क्यों कहते हैं भाई? पागल थोड़ी है यार, पास पेपर करोगे खुद ब खुद हाथ चलना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद हाथ चलना शुरू हो जाएगा। अब तुम इसके बाद कोई और पेपर करना, उसमें इस जैसा क्वेश्चन भी आ गया ना, देखना तुम्हारा 100% टाइम हाफ हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन तुमने 3 मिनट में किया है, वो क्वेश्चन तुमसे 1.5 मिनट में होगा। फिर अगला पेपर करना, तो तुम पूरा एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा। अक्सर बच्चे सोच, सर आपको कैसे याद होते हैं सर, कौन से? भाई हमें भी, हम भी कर करके किया, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा 6 दफा, भाई एक जो है ना ट्रेंड सेट हो गया, तो बस क्वेश्चन आराम से हो जाता है, मसला ही नहीं होता कोई। बात समझ रहे हो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? है है भाई मोहम्मद? हाँ जी। हाँ जी, तो करोगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, ये टेंशन नहीं है कोई। तो अभी तुम लोग जो है ना पक गए हो ये कैलकुलेशन करके, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, सो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, सही है? तो कहीं हम साइको पेशेंट ना बन जाए, तो अब थोड़ा सा मैं अलग सा तड़का लगाता हूँ। थोड़ा सी अभी परफ्यूम चेंज करते हैं, अपनी मूड सेट हो जाए ताकि हमारा। ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 12। अब इलेक्ट्रोलिसिस विच सब्सटेंस बी। दैट कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। हमेशा 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 हमें, मतलब डी में कॉपर इलेक्ट्रोलाइज हो सकता है, ये कहना चाह रहे हो तुम? है भाई? बी फॉर बॉल का है। B for ball. Okay, yes. Always we can do electrolysis for a compound. This is a compound that is NaCl. This is a compound that is lead bromide. So इनकी electrolysis is possible. That's why B for ball is correct option. Okay, B for ball is your correct option. Or question number 13. The apparatus shown is set up to electroplate a steel key with copper. The key does not get coated with copper. तो विच चेंज नीड्स टू बी मेड टू इलेक्ट्रोप्लेट द की। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। की पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और तुम्हारे कॉपर सल्फेट में कॉपर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये नहीं जाएगा उसके पास। तो की को कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। की को रिप्लेस करो इससे, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहां ले जाओ। सो replace the reverse the electrical connections, reverse the electrical connections so that your copper may be attracted towards the key that is having a negative charge. So D for dog is your correct option. D for doctor is your correct option. Okay जी, तो ये आसान है क्वेश्चन, मोल मांगता है प्रैक्टिस। अच्छा एक और मुझे बात से बात याद आ गई, सेटिस्फाई कर रहा हूँ आपको। देखो एक ही पेपर में अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि जिसमें आपको यू आर टेकिंग मोर टाइम, तो वो जालिम नहीं है, ही इज योर फ्रेंड, ही वांट्स टू
ही वांट्स टू सी योर गुड ग्रेड, तो वो इसी पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा जो आंखें बंद करो 2 सेकंड के लिए खोलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे भी होंगे जो आपको पता होगा, बात समझ रहे हो मेरी? जैसे इट इज यूज टू क्लीन स्विमिंग पूल्स, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप बोलोगे क्लोरीन, सोचने का मौका ही नहीं दिया तुमने अपने आप को, क्लोरीन क्लोरीन पता है ना यार, पता है ना भाई। एटम इज हैविंग डैश चार्ज, जीरो चार्ज, आप थोड़ी कैलकुलेशन करोगे, तो कैसा, तो तुम्हारा वो वाला टाइम यहाँ सेव हो गया, मतलब बैलेंस टाइम होगा, बैलेंस। कभी ट्राई करना मेरी इस बात को तुम, उसी पेपर में देखना, आसान आसान बहुत आसान क्वेश्चन भी तुम्हें नजर आएंगे। अब वो अलग बात है, अगर किसी को प्रोटॉन नंबर वाला क्वेश्चन ही मुश्किल लग रहा है तो भाई उसके मसाइल है, उसने पढ़ा ही नहीं है। तो ये देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यस। 1 and 3C. कैसे पता लगा मदार का, कैसे पता लगा व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, कैसे पता लगा कि ये एंडोथर्मिक है? पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक क्या होगा। बात है, क्या बात है यार। पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स दैट द सिस्टम इज एंडो, नेगेटिव होता तो एक्सो होता। द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस, द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर एंडोथर्मिक होता है तो क्या वाटर बिकम्स कोल्डर? वाटर को भी कूल होना चाहिए। वाटर को भी कोल्ड होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है ना? द थर्मल एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अमोनियम नाइट्रेट फ्रॉम द वाटर। हाँ ना, हाँ ना, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। सो ये भी सही है भाई, ए आंसर है इसका, ए आंसर है इसका, ओके। ओके हो गया जी। सो 14 इज ए, क्योंकि एंडो है, एनर्जी इज एंड एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब, बात को समझो जरा। तो एब्सॉर्ब करेगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज अमोनियम नाइट्रेट फ्रॉम द वाटर, तभी तो पानी ठंडा हो रहा है, तभी तो पानी ठंडा हो रहा है भाई। सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दैट्स व्हाई थ्री, तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3, तीनों ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन, ओके। or Born energies are given to you, you can apply the formula reactant minus product, reactant minus product. This is the formula for the Born energy. This is the formula for the Born energy, Born energy. तो कैलकुलेट करिए जरा, फिर हम बताते हैं बेटा आपको which one is correct option. Reactant minus product is the formula. All the values are given to you. You can just apply and then you would be getting the final answer. हाँ जी, reactant minus product. चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर है सी, बट हाउ? यस, अकॉर्डिंगली वर्किंग कर सकते हो आप। So you have to complete this paper, right? You have to complete this paper. So after doing practice, inshallah everything would be fine. तो इसका मसला नहीं है कोई, okay?